الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سورہ فتح، اور سورہ فتح کے بعد یہ تیسری مدنی سورت ہے، یہ سورہ حجرات۔ حجرات کے معنی آتے ہیں گھر یا مکان کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکانات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی امت کی جو مائیں ہیں، تو اس کے اوپر یہ سورت سورہ حجرات ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یا منشا کے بغیر یا آپ کے کہنے سے پہلے اپنے آپ کو اس سے آگے مت بڑھاؤ۔ اے ایمان والو لا تقدموا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بنو تمیم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھے، اور مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ اس کا امیر کس کو مقرر کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اس قافلے کا امیر حضرت قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا امیر مقرر کیا جائے۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر مقرر کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت عمر سے کہ ہمیشہ آپ میری بات کاٹتے ہیں، یعنی میرے بات پر، وہ حدیث بات کا مفہوم ہے یہ کہ آپ نے میری بات کو کاٹ دیا، میں نے جس کا مشورہ دیا ہے اس کے خلاف آپ نے مشورہ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں جو بحث ہوئی یا مباحثہ ہوا یا بات چیت ہوئی، اس کے اندر دونوں کی آوازیں بڑھ گئی، آوازیں اونچی ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت اللہ تبارک تعالیٰ نازل فرمائی کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی آپ کے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دونوں کے درمیان جب آوازیں بڑھی، یہ آیت نازل ہوئی، تو آیت نازل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ سے بات کرتے تھے کہ وہ سنے بھی نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آواز بہت اونچی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ سے بولتے کہ بعض وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ عمر تم نے کیا کہا، اتنی آواز نیچے کی۔ یعنی اپنے بڑوں کے سامنے آوازیں اونچی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے علم میں، تقوی میں بزرگان دین ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، جو بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آوازیں بلند ہو گئی، تو بلند ہونے کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تم مت بڑھو، یعنی انتظار کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشورہ دیں گے۔ اور صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کے بھی پیچھے تم چلے یا ان کی اتباع کی تو تم ہدایت پر پہنچ جاؤ گے، اہتدیتم، ان سے تمہیں رہنمائی ملے گی۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जो जमात तैयार की गई थी, ये एक मुनज़्ज़म तरबियत याफ्ता एक जमात थी। और सहाबा किराम से जो भी लफ्ज़िशें जो हुई है, फौरन अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में उन लफ्ज़िशों से मुतनब्बे फरमाया। ये हमारे लिए बड़ी इबरत है कि उनसे जो लफ्ज़िशें जो हुई, खताएं हुई, और अल्लाह तबारक ताला ने उनका जिक्र कुरान पाक में फरमाया। और एक तरबियत याफ्ता जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने उनके बारे में फरमाया कि ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक ताला सुनने वाला और जानने वाला है। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, क्या ईमान वालों तुम अपनी आवाजें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची मत करो। बड़ों के सामने ज्यादा जोर से बोलना, ज्यादा आवाज से बोलना, ये अखलाक के भी खिलाफ है और मिजाज के भी खिलाफ है। नहीं बोलना चाहिए, आहिस्ता से बोलना चाहिए। और कुरान पाक में दूसरी जगह इरशाद फरमाया इन अनकर अलअस्वाति लसौतुल हमीर, आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधी की आवाज है। इतना आहिस्ता से भी नहीं कि सामने वाले को सुने नहीं आ रहा, इतना जोर से भी नहीं, चीख पुकार है। तो दरमियानी आवाज होना चाहिए, ज्यादा ऊंची आवाजें नहीं होना चाहिए। और यहां पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, आप अपनी आवाजें फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज से ऊंची मत करो। वला तजहरू बिल क़ौल, और जब बोलने लगो तो बोलने में तेज आवाज से, ऊंची आवाज से मत बोलो, जैसे कि तुम एक दूसरे से बात करते हो। तो बात करने में भी जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप बात कर रहे हैं, तो बात करने में आपको अपनी आवाज को भी नीची रखना है, ज्यादा ऊंची आवाज नहीं करना है, और ज्यादा बहस मुबाहिसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं करना है। तो ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची मत करो, और जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बातें मत करो। अन तहबिता अमालकुम, कि तुम्हारे आमाल जाय हो जाएंगे, हफ्त कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को अकारत कर देगा। वांतुम ला तशऊरून, और इसका तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि इनकी आवाज बहुत ऊंची थी। जैसे ये कुरान पाक की आयत नाजिल हुई तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आना बंद कर दी, इनकी ऊंची आवाज थी, और ये कहने लगे कि ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई और मैं दोज़खी हूं, मैं जहन्नमी हूं। अपने आप को इतना डर और खौफ साहबा किराम को था कि फौरन अगर कोई कुरान पाक के अंदर अल्लाह का हुक्म नाजिल होता तो ये अपने, इनकी निगाह अपने अमाल के ऊपर जाती। तो ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो जहन्नमी, मैं दोज़खी हूं, मैं, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे सारे अमाल अकारत हो गए, क्योंकि मेरी आवाज सबसे ऊंची आवाज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी नहीं आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या बात है, हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा हो सकता है ये बीमार होंगे, शायद मेरे पड़ोसी भी है। जब गए वहां पर और जाने के बाद पूछा क्या बात है, यदि तबीयत वगैरह खराब है, क्यों नहीं आ रहे आप? तो फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ईमान वालों अपनी आवाजें नबी की आवाज से ऊंची मत करो, और ना बात करते वक्त तुम एक दूसरे से जैसी बात करते हो वैसी बात मत करो, कि हो सकता है तुम्हारे अमाल अल्लाह ताला जाये कर देंगे, अकारत कर देंगे, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। तो मैं तो जहन्नमी हूं, मैं दोज़खी हूं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इसलिए नहीं आ रहा हूं। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मामला सुनाया कि हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मजलिस में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये कुरान पाक की आयत नाजिल हुई कि नबी के से आवाज से अपनी आवाज को ऊंची मत करो, और वो फरमा रहे हैं कि मेरी आवाज ऊंची है, और यह आयत मेरे बारे में नाजिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें फरमाई उनके बारे में, हमको भी इसके बारे में गौर करना चाहिए। तीन बातें फरमाई कि हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबित कदम जिंदगी गुजारेंगे, यानी कि ईमान पर, अहमाल पर ये साबित कदम है कि एक बेहतरीन अच्छी जिंदगी गुजारेंगे।
वो अपने आप को इस आयत के नाजिल होने के बाद डर रहे हैं ना कि मैं जहन्नमी हूं, मैं दोज़खी हूं, मेरे अमाल सब जाये हो गए। ये अपने ईमान के और अपने अमाल के बारे में बंदे को फिक्रमंद रहना चाहिए, कभी अपने ईमान के बारे में मुतमईन नहीं होना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। तो हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला जब आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि वो इस आयत के नादिल होने के बाद इतना डर रहे हैं और खौफ कर रहे हैं और अपने आप को जहन्नमी करे, मेरे सारे अमाल जाए, मेरी आवाज बहुत ऊंची है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजें उनके बारे में फरमाई। एक तो हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबित कदम रहेंगे, और दूसरी फरमाया कि वो जन्नती है, उनको खुशखबरी सुनाओ वो जन्नती है, और तीसरी खुशखबरी उनको ये सुनाओ कि वो इस्लाम के लिए शहीद होंगे, शहादत की मौत अल्लाह ताला उन्हें नसीब फरमाए। मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में आपने सुना होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही इसने नबूवत का दावा कर दिया। तो जंग यमामा जो हुई थी, जंग यमामा के अंदर साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीक भी हुए और उसी जंग के अंदर इनकी शहादत भी हुई। आवाज ऊंची होने की वजह से अपने बारे में इतना डर रहे हैं, अपने ईमान के बारे में, अपने अमाल के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। और ये कुरान पाक की आयत के बारे में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, क्या ईमान वालों अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची मत करो, और जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज से बातें मत करो, हो सकता है कि तुम्हारे अमाल जाये हो जाएंगे और तुम इसका शऊर भी नहीं होगा। अब आज के दौर के अंदर अगर कोई इंसान बहस मुबाहिसा कर रहा है और बहस मुबाहिसा के सामने अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया कि देखो हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, तो यहां पर अपनी आवाज को नीचे कर देना है। यहां पे फिर अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं इस हदीस को नहीं मानता हूं, मैं आपकी बात को नहीं मानता हूं, ये तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ गई तो वहां पे अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना चाहिए, नीचे करना चाहिए। तो हजरत साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला के बारे में तीन चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। पहली चीज, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, इनको इतना डरने की जरूरत नहीं है अपने ईमान के, अपने अमाल के बारे में। इनकी आवाज ऊंची थी तो रोने लगे, रोने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत माज़ इब्न साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला जो फरमाया, तो फरमाया कि तीन खुशखबरियां उनको दो, एक जिंदगी साबित कदम गुजारेंगे, और दूसरी शहादत की मौत अल्लाह तबारक ताला इनको नसीब फरमाएगा, और तीसरे फरमाया ये जन्नती है। बग़वी ने इस आयत के बारे में फरमाया है कि जब ये आयत पाक नाजिल हुई, दूसरी रिवायत में है, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बारे में फरमाया कि जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई और जब इन्होंने सुना कि ए ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची मत करो, तो जहां पर सुने वो रास्ते में ही रोते हुए बैठ गए, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। हजरत आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा क्या बात है, फरमाया कि कुरान पाक में मेरे बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया कि अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची मत करो, और ये मेरे बारे में रोते रोते वहीं पर बैठ गए। अल्लाह तबारक ताला ने मेरे बारे में कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई, और फरमाया कि उसके बाद अपने घर में गए, और जाने के बाद उनकी बीवी जो थी उसका नाम था जमीला बिनते अब्दुल्ला बिन सलूल, बीवी का इनका नाम था जमीला बिनते अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। तो अपनी बीवी से कहा कि घोड़े का जो बांधने की जगह होती है तो वहां पर मुझे ले जाकर बांध दो, और जब तक मेरे बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म या अल्लाह ताला मेरे बारे में कोई हुक्म नाजिल फरमाता है, जब तक मुझे वहीं पर बांधो। और इसी तरह वो उनकी बीवी ने उनको वहां पर बांध दिया। बाद में हजरत आसिम इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके पास गए, और जाने के बाद देखा कि हजरत साबित बिन कैस ने अपने आप को घोड़े के रस्सी से बांधकर उस कमरे के अंदर रख दिया है कि मेरे बारे में ये कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। तो हजरत साबित इब्न कैस ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये हुक्म नाजिल फरमाया कि आप बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, शहादत की मौत आएगी, और तीसरा जन्नती है। जन्नती होने की खुशखबरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी दी है। तो ये सहाबा किराम अपने ईमान के, अपने अमाल के बारे में इतने फिक्रमंद है। और ये जो सूरह हुजरात है, सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अफराद तैयार किए थे
जिसे हम सहाबा कहते हैं। और अभी हमने पिछली जो सूरत पढ़े थे, सूरह फतह के अंदर आखिरी आयत क्या थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वल्लदीना आमनु माहू, और उनके साथ जो ईमान लाए यानी सहाबा किराम। अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिरों पर सख्त। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहीम। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, जब भी तुम इनको देखेंगे कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, यानी अल्लाह के सामने झुके हुए। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह के फजल को और अल्लाह के रजा को ये तलाश करते हैं। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, अल्लाह ताला ने उन सहाबा किराम की जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनने वाले हैं, इनकी मिसाल तौरात में भी दी है और इंजील में भी दी। तो अल्लाह तबारक ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अफराद अता फरमाए और ऐसी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी की कि अब ये क़यामत तक के लिए सहाबा किराम की जिंदगी भी नमूना है। और जैसे मैंने अभी हदीस बयान की, उस हदीस में क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, किसी एक सहाबी की भी जिंदगी, उसके पीछे उसकी पैरवी करेंगे तो तुम हिदायत पर रहोगे। तो ये सहाबा किराम अपने ईमान के बारे में, अपने ईमान के बारे में कुरान पाक की कोई आयत नहीं, फिक्रमंद हो गए। साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु रोने, अपने आप को जहन्नमी कहने लगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी दी, आप जन्नती है, शहादत की मौत भी आएंगी। और जंग यमामा के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में जंग लड़ते लड़ते ये उसी जंग के अंदर शहीद हो गए। तो पहली आयत सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, आपके दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अपनी आवाजों को ऊंची मत करो नबी की आवाज से, और जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बोलते हो, इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें मत करो। हो सकता है कि तुम्हारे इसके वजह से अल्लाह तबारक तआला तमाम आमाल को हफ्त करेगा, अकारत कर देगा, ज़ाये कर देगा। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें इसका शऊर भी नहीं होगा। इन्नल लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने जब ये अपनी ईमान, आमाल, अपनी जिंदगी के बारे में फौरन फिक्र होगी कि हमारी आवाजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची हो रही है, अल्लाह ताला ने फिर उनकी तारीफ भी फरमाई। इन्नल लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो अपनी आवाजों को नीची करते हैं, यानी ज्यादा बुलंद आवाज नहीं करते हैं, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह तबारक ताला ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया तक़वे के जरिए से। तो अल्लाह ताला ने जब इम्तिहान लिया तो उस तक़वे के मेयार पर सहाबा किराम उतरे हुए थे, फौरन फिक्रमंद हो जाते थे अपने ईमान, आमाल, अपने जिंदगी के बारे में। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और एक बहुत बड़े अज्र अज़ीम का वादा फरमाया। इन्नल लज़ीना युनादऊनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, जो लोग आवाजें करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात के बाहर से, यानी जो कमरे थे, मकानात जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मस्जिद नबी के अतराफ में, उम्महातुल मोमिनीन यानी ईमान वालों की माएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहर्रात यानी जो बीवियों के मकानात थे। तो बद्दू जो होते, देहाती लोग आते और जोर जोर से या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए 13 साल मक्के के अंदर ईमान की मेहनत और मदीना मुनव्वरा आने के बाद उस दीन के गलबे की मेहनत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो आपके बीवी है, बच्चे हैं, आपके पीछे तकाजे हैं, आपकी कुछ जरूरियात है। हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर आराम कर रहे होंगे, या कोई आपका जो पर्सनल जिंदगी है, आपकी एक जाती जिंदगी है, कुछ उसके भी लिए वक्त चाहिए। अब बाहर से आने वाला वो ये सोचता है भाई मैं तो बहुत दूर से आया हूं, मैं देहात से आया हूं, मैं फला इलाके से आया, फला बस्ती से आया, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे हैं कि निकलो, हम इतनी दूर से आए, हमसे आप बात करो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नल लज़ीना युनादऊनका मिन वराइल हुजरात, के वो लोग जो आपके हुजरात के बाहर से, आपके मकानात के बाहर से जो जोर जोर से आवाज करते हैं, अक्सरहुम ला याक़िलून, अक्सर को इसकी अकल नहीं। क्या आप किसके सामने? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके भी कुछ आराम कर रहे होंगे। तो आप हम इतने दूर से आए, हम आपसे बात कीजिए। इसलिए आदाब है ना, आप अगर किसी के मकान पर गए तो कितनी मरतबा आवाज देना है? हदीस के मफहूम में 3 मरतबा आवाज देना है, और 3 मरतबा के बाद आपको कोई जवाब ना मिले तो खामोशी से वापिस हो जाना चाहिए। और आज तो हमारा मोबाइल का दौर है ना, तो मोबाइल के दौर के अंदर भाई जिससे हम बात करना चाह रहे हैं
तो मैसेज डालकर पहले इजाजत ले लेनी चाहिए उनसे कि हजरत मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपके पास वक्त है क्या? आने वाला अपना वक्त लेकर आ रहा है, जिसके पास जा रहा है उसके पास भी तो वक्त होना जरूरी है ना। आपने देखा बाज़ वक्त इंसान 12 बजे रात में 1 बजे रात में फोन लगा दे रहे, भाई वो सोया होगा, उसके भी कोई तकाजे होंगे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आवाजें देते हैं उनके हुजरात मकानात के बाहर से, अक्सर में उनको अकल नहीं है। तो ये बदबू जो आते थे देहातों से, तो ये आकर जोर जोर से आवाज देते हैं। अल्लाह ताला उम्मत को ये सिखा रहे हैं कि भाई आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए हैं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये इमामुल अंबिया हैं, इनके भी कुछ तकाजे हैं, इनकी बीवियां हैं, इनकी जरूरियात है। ये अपना कुछ वक्त निकाल कर अपनी जरूरियात के लिए कभी आराम फरमा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलो और हमसे मुलाकात करो, हम इतने इलाके से आए हैं, फलां बस्ती से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे इनको अकल नहीं। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, लव अन्नहुम सबरू हत्ता तखरज इलैहिम, अगर ये थोड़ी देर सब्र करते, हो सकता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, दोपहर का वक्त है, जब आपकी नींद आपका आराम पूरा हो जाएगा खुद ये चलकर आपके पास आ जाएंगे। हत्ता तखरुज इलैहिम, यहां तक कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर इनके पास आते, लकान खैरल लहुम, ये इनके लिए बेहतर था। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। आपने तौबा कर लिया, गलती हो गई, अल्लाह ताला से माफी मांगी, हमसे गलती हो गई, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला भी है, रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात कुरान पाक में, ये मदनी सूरत है, ये 3 सूरतें जो पढ़ रहे थे, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह फतह, और सूरह फतह के बाद ये सूरह हुजरात। इसके अंदर इस्लाह के ताल्लुक से कि इंसान ने अपनी इस्लाह कैसे करनी चाहिए। अभी एक इस्लाह क्या आई, अल्लाह और उसके रसूल के सामने, उनके सामने मशवरा मत दो, उनसे उनके बात करने से पहले आप बात मत करो, और उनसे आवाज भी ऊंची मत करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और तीसरी चीज, मकानात के बाहर से जोर जोर से आवाज मत दो। अब चौथी चीज यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर तुम्हारे पास कोई गुनाहगार या फासिक कोई खबर लेकर आए। अब हमारा आज का दौर है सोशल मीडिया का दौर, कोई खबर मोबाइल पर आ गई, हम उसको फॉरवर्ड कर दे रहे, कोई तहकीक नहीं उसके बारे में। और हदीस में आता है, कफा बिल मरी कदिबन अन युहद्दिस बिकुल्ली मा समिया, आदमी को झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो जो कुछ सुने वो लोगों से कहता हुआ फिरे। आपको अगर किसी ने आकर इत्तला दी कि फलां शख्स के बारे में मैंने ऐसा सुना है, आपने उसका यकीन कर लिया और वही बात आपने आगे बढ़ा दी। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, कफा बिल मरी कदिबन, आदमी को झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है, अन युहद्दिस बिकुल्ली मा समिया, कि जो कुछ उसने बात सुनी थी उसको वो लोगों से कहता हुआ फिरे। पूरी तहकीक कर लेना चाहिए। यहां तक कि हदीस पाक मफहूम में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हारे पास कोई शख्स आए और उसकी एक आंख फूटी हुई है और उससे खून बह रहा है और वो ये कह रहा है कि फलां शख्स ने मुझको मारा है, तो मेरे तरफ से उससे बदला लो, तो उसके बात पर भरोसा मत करो। हाँ कि उसकी एक आंख फूटी हुई है, खून भी बह रहा है, उसके ऊपर यकीन मत करो, हो सकता उसने सामने वाले आदमी की 2 आंखें फोड़ कर आई। हम क्या करते हैं, हमदर्दी के अंदर, दोस्तानी के अंदर, खानदानी रिश्तेदारी है या मोहब्बत के अंदर फौरन उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं और एक मजमा लेकर उसके खिलाफ आप खड़े हो गए। तहकीक कर लेना चाहिए, सिक्के के दोनों रुख देखना चाहिए। किसी भी आदमी के बात पर फौरन भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये झूठ बोल रहा होगा। और मुनाफिक की कितनी निशानी है, 4। इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाए तो खियानत करे, व इज़ा खासमा फजरा, और जब झगड़ा करे तो गाली गलौज पर आ जाए। तो झूठ अभी सोशल मीडिया में पूरा झूठ, जितना भी मीडिया चल रहा है ना, प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया और सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो इसके अंदर सारा झूठ है। उस झूठ को इंसान अगर यकीन कर ले ये सच है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, ईमान वालों, इज़ा जाअकुम फासिकुन, जब तुम्हारे पास कोई गुनाहगार फासिक कोई खबर लेकर आए। अब कितनी खबरें चल रही है मीडिया के अंदर, और सब झूठी खबरें, और आपके पास कोई मैसेज आ गया, पता नहीं वो सही है या नहीं, आपने उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दी, कोई तहकीक नहीं की कि ये खबर सही है या गलत है।
تو यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक, कोई गुनाहगार बिनबईन खबर लेकर आए, फतबय्यनु, उसकी खूब तहकीक कर लो। यकीन मत करो, किसी की बात पर यकीन मत करो जब तक कि तुम उसकी पूरी तहकीक नहीं कर ले। अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु, कहीं तुम इस नादानी के अंदर, किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाओ। फतुस्बिहु अला मा फालतुम नादिमीन, और फिर कल को तुमको उस अमल के ऊपर पछतावा पड़े। किसी बगैर तहकीक के आपने यकीन कर लिए थे खबर का, और तहकीक करने के बाद जब मालूम हुआ कि भाई ये खबर तो झूठी खबर थी, इस सामने वाले ने मुझे झूठी खबर दिया, और मैंने जो इकदाम किया उसके खबर के ऊपर, तो उसके बाद में फिर आपको पछताना पड़ता है, यार मैंने फला आदमी ने बोला था, बताया था, मैंने यकीन कर लिया, और यकीन करके उसी को सच माना, तहकीक मैंने नहीं करा, बाद में उसका नुकसान उठाना पड़ता है इंसान को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबईन, ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक, गुनाहगार कोई खबर लेकर आए तो उस खबर की पूरी पूरी तहकीक कर लो, ताकि तुमको बाद में पछताना ना पड़े। वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, और ये बात जान लो कि आपके दरमियान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। ये एक वाकया हुआ था, हजरत हारिस बिन ज़िरार खुजाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए, और मजलिस में आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें ज़कात अदा करना पड़ेगी। तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इस्लाम के अंदर इस्लाम के अरकान कितने हैं? पहला है कलमे तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरा है नमाज, रोजा, हज और ज़कात। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको ज़कात देना पड़ेगी। तो कहा ठीक है, मैं अपने कौम में जाकर अपने कौम को भी दावत देता हूँ, और कौम को दावत देने के बाद जो लोग ईमान लाए थे उनकी भी ज़कात वसूल करता हूँ। इस तरह हजरत हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम को कबूल किया, और इस्लाम को कबूल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं अपनी बस्ती के अंदर, अपने गांव में जाने के बाद वहां के जितने लोग ईमान लाए उन तमाम की ज़कात, मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनके बारे में, उन तमाम का मैं निचोड़ बता रहा हूं कि हजरत हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम तो कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल होने के बाद ज़कात का वादा भी कर लिया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप किसी शख्स को हमारे पास भेजिए ज़कात वसूल करने के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात वसूल करने के लिए भेजा, और यह कबीला बनु मुस्तलिक था। हजरत वलीद बिन अलक़मा बिन अबी मुईत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बनुल मुस्तलिक के दरमियान में जाहिलियत के दौर के अंदर एक दुश्मनी थी दोनों के दरमियान। किसकी? बनुल मुस्तलिक की और वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत। अब ये दोनों के अंदर दुश्मनी थी। तो हजरत वलीद बिन उक़बा जब ज़कात वसूल करने के लिए उनके बस्ती में गए, बनुल मुस्तलिक के अंदर जैसे ही गए तो वो बस्ती वाले बाहर आ गए। तो इन्होंने ये समझा कि हमारी जो पुरानी दुश्मनी है ये मेरे से बदला लेने के लिए आए, और उसी तरह वापिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया और वो मुझे कत्ल करने के लिए आ रहे थे, इसलिए मैं वापिस आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। फौरन एक लश्कर तैयार हुआ, भाई जो ज़कात का इनकार करेंगे तो वो उन्होंने तो इस्लाम के अरकान का इरकान किया। फौरन एक लश्कर तैयार हुआ। इन आयत के अंदर अल्लाह तबारक तआला दी, कोई खबर आकर आपको के पास दे रहा, उसके पर यकीन मत करो। इनको क्या गलत फहमी हुई? हजरत वलीद बिन उक़बा को गलत फहमी क्या हुई कि मेरी और बनुल मुस्तलिक की जो जाहिलियत के दौर की दुश्मनी है, तो मैं अब तो ज़कात वसूल करने के लिए जा रहा हूं। और उधर फरमाते हैं कि हजरत हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने कहा कि कोई कासिद, कोई बंदा हमारे पास ज़कात वसूल करने के लिए भेजे, और एक बंदा हमारे पास ज़कात लेने के लिए आया था लेकिन रास्ते से वापस चला गया, तो हो सकता अल्लाह के रसूल हमारे किसी अमल से नाराज होंगे। तो फौरन इन्होंने एक जमात, एक लश्कर, वफ्द तैयार किया और सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए, और आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की।
تو فرمایا کیا تم نے ہمارے آدمی کو زکات دینے سے انکار کیا؟ بولے وہ تو ہمارے پاس آئی نہیں، اور راستے میں جب آ کر واپس چلے گئے تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض تو نہیں، ہم زکات دینے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مشورہ کیا، مشورے کے اندر مختلف مشورے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بستی کے حالات تحقیق کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجی، اور جا کر کہا کہ دیکھو یہ جو خبر لے کر آئے، کس نے خبر لایا؟ ولید بن عقبہ نے، جا کر دیکھو کہیں وہ لوگ اسلام تو نہیں چھوڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تو وہاں پر انہوں نے مغرب کی اذان سنی اور عشاء کی بھی اذان سنی، اور وہ سب لوگوں نے آپ کو زکات بھی دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسلام کے اندر ہی ہے، انہوں نے زکات بھی دی ہے، ارے آپ کو جو خبر آئی تھی یہ جھوٹی خبر تھی۔ اب یہ آیتیں اب سمجھ میں، کیا سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کر لو۔ اب یہ ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھریلو زندگی، اس کے اندر بہت سارے گھر جو تباہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، کسی کی کوئی خبر آ گیا، ایک فون آ گیا، مثال کے طور پر آج کی طرف فون ہے نا، اور آپ نے فوراً اس کے اوپر یقین کرے، گھروں کے گھر برباد ہو رہے، بھائی بھائی کے اندر دشمنی، بھائی بہنوں کے اندر دشمنی، باپ اور بیٹے کے درمیان دشمنی، خاندانوں کے اندر دشمنی، پڑوس کے محلے کے اندر، صرف ایک خبر آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کے پر یقین کر لی۔ تو کوئی بھی خبر اگر آپ کے پاس آئے اس کی پوری تحقیق کر لو۔ اگر بغیر تحقیق کے اگر ڈائریکٹ اس بستی پر حملہ کیا جاتا تو کئی لوگ اس کے اندر شہید ہو جاتے۔ مسئلہ کیا تھا؟ شیطان نے غلط فہمی ڈال دیا تھا۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بنو مستلق سے جو میری پرانی دشمنی تھی جاہلی دور کی، تو یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور شیطان نے وہ وسوسہ ان کے اندر ڈال دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، اور وہ مجھے مارنے کے لیے باہر آئے تھے، اس لیے میں واپس آ گیا، میں نے زکات وصول نہیں کی۔ حضرت خالد بن ولید نے جا کر جب حال کی تحقیق سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ایسا کچھ بھی نہیں، انہوں نے زکات بھی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق گناہگار کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم پر نادانی کی وجہ سے اگر کوئی عمل کر دو، ان کے اوپر جا پڑو یا حملہ کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، بعد میں معلوم ہے نہیں یار خبر تو غلط تھی وہ۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہے۔ جیسے یہ خبر آئی فوراً صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ایک لشکر بھیج دو ان کے اوپر اس بستی پر حملہ کرنے کی۔ اللہ فرما رہے وَعَلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اگر یہ بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو اطلاع بھی دے گا نا، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، انتظار کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام باتوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگے، تمہارے مشورے پر عمل کرنے لگے، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اگر تمہارے مشورے کے پر اللہ کے رسول عمل کر لیتے تو مشکل کس کی؟ آپ کی مشکل ہو جاتی۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ یہ سب باتیں کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ہماری تربیت کے لیے۔ اصل میں ہماری اللہ تبارک تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہے، ان کی زندگی کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں، عبرتیں نصیحتیں ہمارے لیے ہے۔ ہم کو کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خوب تحقیق کر لینا چاہیے۔ اور کون سی ہے؟ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی۔ اس زندگی کے اندر ایسے مختلف اتار اور چڑھاؤ، ایسے حالات آتے رہتے ہیں، ایک صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آپ کے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری تمام باتوں کے اندر تمہاری بات کو مان لے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ وَزَيَّنَهُ، اور اس کی محبت تمہارے دلوں میں کھبا دی ہے۔ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اسلام اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں کی، فسق کی اور نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی صحابہ کرام کے اندر۔ اولئک هم الراشدون، یہ تمام کے تمام ہدایت یافتہ ہیں، پورے صحابہ کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات کے اندر فرمائے۔
फजलम मिन अल्लाह व निअमतन, ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला की तरफ से, ये अल्लाह ताला का एहसान है तुम पर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है और हिकमत वाला है। उसके हर काम अल्लाह ताला के अपने इल्म से और अपनी हिकमतों से होते हैं। व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इख्तलफू फास्लिहू बैनकुमा, अगर दो ग्रोह ईमान वालों के आपस में लड़ पड़े, ईमान वालों के दो ग्रोह लड़ पड़े, अब उसकी अल्लाह तबारक ताला अहकामात फरमाए कि दो ईमान वाले आपस में लड़े पड़े। व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इख्तलफू फास्लिहू बैनहुमा, तो उनकी इस्लाह कर दो, उनका मिलाप कर दो, दोनों ईमान वालों को जोड़ने की तुम फिक्र करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गधे पर सवार होकर अब्दुल्ला इब्न उबई के पास गए, तो वहां पर जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गधा था ना, गधे की सवारी की, घोड़े की भी सवारी की, ऊंट की भी सवारी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न उबई से मुलाकात करने के लिए गधे पर गए, तो अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकीन का सरदार, रईसुल मुनाफिकीन, जैसे ही गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात कर रहे थे तो फरमाए कि तुम्हारा गधा है ना, इसको जरा दूर रखो, बोले इसकी बदबू आ रही, बोले मुझे। किससे कह रहा है ये? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये गधा जरा दूर करो, बोले इसकी बदबू आ रही है। एक अंसारी साहबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे से तो बदबू नहीं आ रही, बोले ये तेरी खुशबू से बेहतर है, बोले ये गधा इनका। तो जैसे ये कहा तो अब्दुल्ला इब्ने के साथी जो खुश थे वो दोनों खड़े हो गए। अब दो ग्रुप बन गए ना, ग्रुप बन गए। अब बज़ाहिर ये तो ईमान वाला है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ लिया, लेकिन दिल के अंदर निफाक है। जाहिर में इस्लाम को कबूल कर, कलमा अगली आयत तो वही आ रही है, जाहिर में तो इसने कलमा पढ़कर दिया तो मुसलमान है, और क्या कह रहा है, तुम्हारे गधे से बदबू आ रही, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है। तो वो अंसारी साहबी को बुरा लगा और फरमाया कि ये तेरी खुशबू से अच्छी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गधा है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बोले बदबू नहीं है। तो उसके तरफ से कुछ लोग थे, वो खड़े हो गए और आपस में दो इतना लड़े कि फरमाए जूते चप्पल से एक दूसरे को मारने लगे। अब मसला आ गया, कौन लड़ रहे? दो ईमान वाले। अब हुक्म क्या है, जब दो ईमान वाले आपस में लड़े, वही ताइफतान मिनल मुमिनीन इख्ततलू, कि अगर दो ईमान वालों के ग्रोह या जमात आपस में लड़ पड़े तो उनका मिलाप करो, उनकी इस्लाह करो। फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अगर एक जमात ने दूसरी जमात पर या एक गुरोह ने दूसरे गुरोह पर बगावत की, चढ़ावा किया, फ़कातिलु लत्ती तबगी, तो तुम उनसे लड़ो जो बागी ग्रुप है, हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म पर आ जाए। फ़इन फ़ाअत, अगर वो अल्लाह के हुक्म पर आ गया, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तो उन दोनों का मिलाप कर दो, उनकी आपस में सुलह कर दो, बिल अदल, अदल के साथ, इंसाफ के साथ, वो अक्सितु, और इंसाफ करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह तबारक ताला इंसाफ करने वाले को पसंद करता है। दो ईमान वालों के ग्रुप है, एक दोनों मुसलमान है, जैसे जंग जमल और जंग सिफीन मालूम है आप, सहाबा किराम के दरमियान हुई। एक तरफ हजरत अली है और दूसरी तरफ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। और जंग जमल और जंग सिफीन आपस में सहाबा किराम में हुई। इनकी आपस में कोई दुश्मनी और नफरत नहीं थी। सहाबा किराम तमाम के तमाम हमारे सरों के ताज है, और हम जैसों को उन अकाबिरीन के बारे में खिलाफ बोलने का हमें हक भी नहीं है। सहाबा किराम ने जो अल्लाह के रास्ते के अंदर जो जिहाद किया, जो जंगी की, उनके घोड़ों के नाक में जो धूल पड़ी है, उस धूल के बराबर भी हम नहीं। हमें क्या हक पहुंचता कि अपने सहाबा किराम के बारे में अपनी लब कुशाई करे या अपनी जबानों को खोले? नहीं खोल सकते हम। तो जंग जमल और जंग सिफीन जो सहाबा किराम के दरमियान में हुई, तो जंग जमल और जंग सिफीन के दरमियान में फरमाते कि एक मरतबा एक शख्स के बारे में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मसला आया, और उनसे लोगों ने शिकायत की कि ये फलां शख्स जो है जंग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से लड़ रहे थे, और खाना हमारे मजलिस में आके खाना खाते, हमारा जो खाना जो बनता है ये खाना हमारे साथ में खाते, और जंग किधर से लड़ रहे? हजरत अली रज़ियल्लाहु। तो उनको बुलाए हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और पूछा क्या बात है?
जंग तुम हमारे खिलाफ लड़ रहे हो और खाना हमारे महफिल में, हमारे मजलिस में, हमारे खाने में तुम खा रहे। तो उन्होंने कहा जंग अली की अच्छी है बोले, और खाना तुम्हारा अच्छा है बोले, उधर खाना नहीं बनता बोले। तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है खाना इधर खाते जाओ बोले, जंग उधर से लड़ो। नफरत नहीं थी आपस में, मोहब्बतें थी, इल्मी मसला था, उसके ऊपर इख्तिलाफ, समझ की, इज्तिहाद की गलती थी उनकी, वो उनका मामला था। इसलिए फरमाए कि अपने जो पुराने लोग हैं, जितने भी अकाबिरीन हैं, जो गुजरे हुए, इनको बुरा मत बोलो, ये हमारे सरों के ताज है। तो इन आयत के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इख्ततलू, अगर ईमान वालों के दो गुरोह आपस में लड़े तो उनकी इस्लाह करो, और अगर कोई फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, और अगर कोई बाकी ग्रुप है फ़कातिलू, तो उससे लड़ो, हत्ता तबगी हत्ता तफिया ये अमरिल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आ जाए। फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू, अगर वो आ जाए तो फिर उसका इस्लाह करो, उससे सुलह कर लो, और उन दोनों के दरमियान में सुलह कर लो इंसाफ के साथ, और बेशक अल्लाह तबारक ताला इंसाफ करने वाले को पसंद करता है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई है। फ़अस्लिहू बैन अख्वैकुम, तो ईमान वाले भाइयों की आपस में इस्लाह कर दो, सुलह कर दो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, ए ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम की, कोई फर्द किसी फर्द की, कोई जमात किसी दूसरी जमात की मजाक मत उड़ाए। अन यकून खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो जिसकी मजाक उड़ाई जा रही है वो तुमसे बेहतर हो, कोई किसी की मजाक ना उड़ाए। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये थोड़ा ऊंचा सुनते थे, उनको जरा जोर से बोलना पड़ता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस होती, तो मजलिस के अंदर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब आकर बैठते थे, बहुत से लोगों को जोर से बोलना पड़ता तब उनको सुने आता। तो ये साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की मजलिस में एक मरतबा इनको दौर हो गया, और मस्जिद नमाज के बाद सब लोग बैठ गए। इतनी जगह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जगह ना काफी थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे मजमे को फलांगते फलांगते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। करीब आने के बाद हुजूर के सामने और एक शख्स बैठे हुए थे, तो उनको हटाने की कोशिश, वो हटे नहीं, बोले यहीं बैठ जाओ, बोले वो पीछे बैठ गए। यानी हुजूर के करीब आने का मौका नहीं मिला। सामने जो शख्स था उसने कहा, बे है ना जगह तुमको बैठने की, बैठ जाओ ना, बोले। वो कह रहे थे कि मुझे हुजूर के एकदम करीब बैठने दो, मुझे ऊंची आवाज लगती सुनने के लिए, दूर अगर होगा तो मुझे आवाज नहीं आएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर मजलिस हो गई। मजलिस होने के बाद जब उजाला हो गया, तो वो जो सामने बैठा हुआ बंदा था उसको पूछे किसका बच्चा है, बोले हमारे अब्बा का नाम क्या है? तो उसने कहा भाई मैं फलां का बेटा हूं। बोले अच्छा, बोले तुम्हारी माँ जो है तो वो है ना? बोले ताना दे दिए, ताना दे दी। ताना देने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में हुक्म नाजिल किया कि किसी को ताना मत दे। यहां तक कि हदीस में आता है कि अगर किसी आदमी ने किसी गुनाह से तौबा कर ली, कोई शराबी, कोई जिवारी, कोई मिसाल के तौर पर गुनाह में उतरा, उस गुनाह से उसने तौबा कर लिया, और तौबा करने के बाद आपने झगड़े के अंदर उसको उस गुनाह का ताना दिए जिससे उसने तौबा कर लिया था। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस गुनाह से बंदे ने तौबा कर लिया और उसका ताना आपने उसका दिए, तो अल्लाह तबारक ताला जब तक इस ताना देने वाले को उस गुनाह में मुब्तला नहीं करेंगे, इसको मौत नहीं आएगी। मामूली बात नहीं किसी को ताना देना, बुरा भला कहना, जिससे उसने तौबा कर लिया है। तो ये हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला ने उसको ताना किया दिया, किसका बेटा है? फलां का। अच्छा, वो तेरी माँ वो है ना? बोले अब उसने उनका वो माँ का ताना दिया। अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया, ए ईमान वालों, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, ये अफराद तैयार कर रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह तबारक ताला उनके जरिए से अहकामात हमारी तरबियत के लिए कुरान पाक के अंदर नाज़िल, क़यामत तक के लिए तरबियत है। अब किसी की मजाक मत उड़े, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई काना है। यहां तक के फरमाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला के पास बैठे थे, तो हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला ना, ये हुई बिन अख्तब यहूदी था, उसकी बेटी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया की तारीफ फरमाई, तो फौरन हजरत आयशा की जुबान से निकला, अच्छा बोले वो, ऐसा इशारा करे सिर्फ, यानी कि उनका खत छोटा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय आयशा बोले, ये जो तुम्हारे अल्फाज है ना, वो यहूदन, एक रिवायत में तक फरमा वो यहूदन बोले, और फरमाया कि उनका खत जो छोटा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुमने अपनी जुबान से जो अल्फाज निकाले, अगर इस अल्फाज को समंदर में अगर डाल दिया जाए तो पूरा पानी कड़वा हो जाएगा। किसी का ऐब नहीं निकालना चाहिए, किसी को भरा बुला नहीं बोलना चाहिए, किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहां पर अल्लाह फरमाए, ईमान वालों, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम किसी कौम की मजाक मत उड़ाए। किसी के अंदर कोई ऐब होता है ना, तो उस ऐब से उसको पुकारा जाता है, उस ऐब को नहीं पुकारना चाहिए। ईमान वालों, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम किसी कौम की मजाक मत उड़ाए। असा अन यकून खैरम मिनहुम, हो सकता है जिसकी मजाक उड़ाई जा रही है तुमसे बेहतर है। वला निसाउन मिन निसाइन, और कोई औरत किसी औरत की मजाक मत उड़ाए। असा अन यकून खैरम मिनहुन्ना, हो सकता हो कि वह औरत जिसकी मजाक उड़ाई जा रही है, मजाक उड़ाने वाली से वह बेहतर हो। वला तलमिजू अनफुसकुम, और एक दूसरे पर ऐब मत लगाओ। वला तनाबजू बिल अलकाब, और एक दूसरे को बुरे ऐब से मत पुकारो। किसी के बंदे के अंदर कोई ऐब रहता तो उसको उस ऐब से पुकारा जाता, ए अंधे, ए लंगड़े, ए गिड्डे। ऐसा हमारे जुबान में भी होता है ना, कोई छोटे खत का है तो उसको गिड्डे बोलते, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, या कोई ऐब उसके अंदर मौजूद है, तो उस ऐब से कुरान पाक का फरमाया, कितने फरमाया, एक तो मजाक मत उड़ाओ, और दूसरा किसी के ऐब मत निकालो, और तीसरा फरमाया कि बुरे अलखाब से किसी को मत पुकारो। बिइसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ये बहुत बुरा काम है ईमान लाने के बाद, बहुत बड़ा गुनाह है ईमान लाने के बाद कि आपने किसी की ऐब निकाली, किसी के बद पीछे उसके बारे में बुरा भला कहा। वमन लम यतूब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अगर कोई इंसान इन गुनाहों से तौबा नहीं करेगा तो वो बहुत बड़ा जालिम है। ये बहुत बड़े कबीरा गुनाह है ये, किसी को हिकारत से देखना, किसी का ऐब निकालना, किसी की मजाक उड़ाना और बुरे अलकाब से पुकारना। जो कोई इससे तौबा नहीं करेगा, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो जालिमीन में से होंगे। बाद में इन्होंने तौबा कर लिया, अगर साबित गलती हो गई भी, हुक्म आ गया अल्लाह ताला का, उनके माँ का ताना दिया, फलां औरत का तो बेटा है ना, बोले वो तुम्हारी माँ तो ऐसी है। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये आयतें नाज़िल हुई तो उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, और अल्लाह ने भी फरमाया, वमन लम यतुब, अगर कोई तौबा नहीं करता है तो फिर वो जालिमों में से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, ऐ ईमान वालों बहुत सारे गुमानों से बचो, क्योंकि बहुत सारे गुमान गुनाह होते हैं। यानी बदगुमानी नहीं करना चाहिए, हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। गुमान से बचो कि बहुत सारे गुमान गुनाह होते हैं। वला तजस्ससु, और एक दूसरे के टोह में मत लो। यही तजस्सुस, जासूसी से बनाए ना, किसी के बारे में जासूसी नहीं करना चाहिए। वला यक्तब बाजुकुम बाजन, और कोई किसी की गीबत मत करे। तीन चीजें आ गई यहाँ पर, एक तो बदगुमानी से, बुरे गुमान से बचना है, और दूसरा है तजस्सुस नहीं करना है, जासूसी नहीं करना है, टोह में नहीं पड़ना है। वला यक्तब बाजुकुम बाजन, और कोई किसी की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। गीबत क्या है? एक मर्तबा सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जिस भाई की, जिसकी भी गीबत कर रहे हैं, उसकी बुराई बयान कर रहे हैं, वाकई अगर उसके अंदर मौजूद है तो क्या यह गीबत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो गीबत है, किसी की बुराई उसके बद पीछे करना। क्योंकि जिस बंदे की आप बुराई कर रहे हो वो मौजूद नहीं है, तो वो बदला भी नहीं ले सकता है, अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सकता है। तो गोया ये ऐसा है, किसी की बुराई उसके बद पीछे करना ये गीबत है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जिस बंदे की तुम बुराई उसके बद पीछे कर रहे हैं, तो ये बुराई बयान करना बद पीछे गीबत है। और अगर मौजूद नहीं है तो उससे बड़ा गुनाह है बहतान, आपने उसके ऊपर बहतान लगा दिया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला यक्तब बाजुकुम बाजा, कोई किसी की गीबत ना करे।
क्या कोई इस बात को पसंद करता है अय्याकुल लहम अखीही, कि वो अपने भाई का गोश्त खाए, मैतन, जो मुर्दार है। यानी एक तो गोश्त खाना इंसान का बुरी बात, उसके बाद वो भाई कौन है? मुर्दा। मुर्दा भाई की गोश्त खाना क्या तुम पसंद करते हो? फकरी तुम हो, तो तुम्हें इस बात से घिन आएगी, तुम इसको नापसंद करते हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन्न अल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तबारक ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो गीबत से अपने आप को परहेज करना चाहिए। गीबत से अमाल जाये हो जाते हैं और ये गुनाह कबीरा में आता है। अगर हमारे से गलती से किसी के बारे में, उसके बाद पीछे कोई बुराई हुई, तो जब तक क़यामत के दिन वो बंदा हमें माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ करने वाला नहीं। हुकूकुल इबाद के अंदर आते, एक अल्लाह का हक है, हो सकता है अल्लाह ताला अपना हक माफ कर देंगे, लेकिन जो बंदों के हक है हुकूकुल इबाद, ये चुगली करना, गीबत करना, किसी की बद पीछे बुराई बयान करना, किसी को ताना देना, इससे, इन गुनाहों से, ये गुनाह कबीरा है, इससे तौबा करना चाहिए। हुकूकुल इबाद के अंदर कल क़यामत दिन अल्लाह तबारक ताला बंदे से कहेगा कि फलां से जाकर जिस बंदे की तूने गीबत की थी और हुकूकुल इबाद के अंदर जो कमी कोताही हुई, उनसे माफी मांग ले। और क़यामत दिन कोई किसी को माफ नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे अल्लाह मुझे आज बदला चाहिए। तो इसी तरह गीबत, और गीबत कितना बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाए कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना, एक तो मुर्दार और उसके बाद आपका भाई, उसका गोश्त खाना इंसान की बद पीछे बुराई बयान करना है। और अगर बुराई नहीं है तो वो उससे बड़ा गुनाह है, वो है बहतान। अल्लाह ताला गीबत से हम तमाम की उम्र, और ये आम बीमारी हो गई इंसानों के अंदर गीबत। कोई भी किसी की बद पीछे उसकी बुराई बयान कर रहा है। तो आज हमारे पास वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर जिस जिसकी गीबत हमने करे हैं, उसकी बुराई बयान करे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर माफी मांग ले। बोलना जरूरी है कि मैंने आपकी गीबत की थी, आपके बारे में मैंने जो भी कहा, मेरे से जो भी गलती हो गई, अपनी जिंदगी के अंदर माफी, मौत से पहले पहले माफी मांग लेना चाहिए। क्योंकि किसी को अपनी जिंदगी के बारे में भरोसा नहीं है, वो जिंदा रहेगा ही नहीं। एक तरफ सलाम फेरे, दूसरे सलाम फेरने का भरोसा नहीं। एक लुकमा आपने उठाई है, मुंह तक जाएगा, इसका भरोसा नहीं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कुछ पता नहीं हमें क्या होगा। तो अपनी जिंदगी के अंदर नेक अमाल, और अगर गुनाह हो गए फौरन उससे तौबा। हुकूकुल इबाद के अंदर अगर कोई कमी कोताही होगी तो फौरन अल्लाह के बंदों से अपनी माफी मांग लेना चाहिए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, ये ऐसे गुनाहों से आप बचो। बेशक अल्लाह तबारक ताला माफ करने वाला, रहम करने वाला है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन उन्सा, ए लोगों, अल्लाह तबारक ताला ने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। एक मर्द यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और एक औरत हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। ये पूरी नस्ल जो चली आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक, एक आदम और एक हव्वा से पूरी नस्ल अल्लाह ताला ने चलाई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों, अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया एक मर्द और एक औरत से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे कुंबे, कबीले बनाए हैं, तुम्हारी जातें और कबीले बनाए हैं। लितारफू, और ये सिर्फ तारुफ के लिए है। तुम सब क्या है? सब बराबर है। अल्लाह तबारक ताला के पास तमाम इंसान बराबर है। एक ईमान वाला है, गैर ईमान वाला, इसका फैसला अल्लाह ताला आखिरत में करेगा, जन्नत या जहन्नम का। लेकिन जितने भी इंसान है, या अय्युहन्नास फरमाया, ए लोगों, ये ईमान वालों नहीं। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और तुम्हारे जाति भी बनाई और कबीले भी बनाए। ये सिर्फ तारुफ के लिए है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह तबारक ताला के पास ज्यादा मुकर्रम और इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। सब बराबर है। इसलिए हज्जतुल विदा के वक्त पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला फज़ला अला अरबिय्यिन वला अजमिय्यिन, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं। कुल्लुकुम मिन बनी आदम, तुम तमाम के तमाम आदम की औलाद हो, और आदम कैसे बने हैं? मिट्टी से बने। तकवा का अगर है, अगर परहेजगारी है, आप नेक है, बड़े अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह ताला के पास और मकाम और मर्तबा है। इंसानों के एतबार से सब बराबर है, सब मर्द भी बराबर है, औरत भी बराबर है, सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। औरत ने नमाज पढ़ी तो उसको पूरा सवाब मिलेगा, और मर्द ने पढ़ा तो आधा, या औरत ने पढ़ी तो आधा मिला और मर्द ने पढ़ा तो दोनों को सवाब में बराबर है। नमाज में बराबर है, ज़कात में बराबर है, हज में बराबर है, अमाल में बराबर है, सब अल्लाह ताला के पास बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबा किसको ऊंचा है अल्लाह ताला के पास? तकवा जिसमें ज्यादा।
جو जितना मुत्तकी होगा, जितना अल्लाह से डरने वाला होगा। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊअब व क़बाइला, तुम्हारी जातें और कबीले बनाए, लितारफू, ताकि इससे तुम पहचाने जा सको। कुंबा, कबीले, जातें सिर्फ पहचान के लिए। अल्लाह ताला के पास इज्जत वाला तो वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला भी है और हर चीज की खबर रखने वाला है। कालतिल आराबु आमन्ना, ये बद्दू गंवार ये कहते हैं कि हम ईमान लाए। अगर कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो ये कलमे तौहीद है। ये कलमे तौहीद पढ़ने के बाद वो मुसलमान हो जाता है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? 5। पहला कलमे तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये बंदा पढ़ लिया उसने तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज में है। पहला है कलमे तौहीद, और दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है हज और 5वां है ज़कात। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम में दाखिल होता है इस्लाम के अंदर, वो कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने इसका जुबान से इकरार कर लिया वो ईमान वाला है, उसे हम मुसलमान कहेंगे, वो ईमान वाला है। तो यहां पर अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कालतिल आराबु आमन्ना, ये आराबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मदीनी सूरत है ना, मदीने आए थे एक बार, बहुत सारे लोग आ रहे, बद्दू है, देहात के रहने वाले हैं, ये आकर कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये अरबी कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। कुल लम तुमिनु, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो कि तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन कुलू अस्लमना, बल्कि तुम यूं कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद क्या किया? आपने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हुए। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, अभी तुम इस्लाम में दाखिल हुए। अब समझ में आ गया ईमान और इस्लाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल होते हैं। ईमान आगे की चीज है, वो दिल की कैफियत है। तो ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो थे कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि ये कहो कि हमने इस्लाम लाए, हम मुसलमान हो गए। अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं है। वइन तुतीउल्लाह व रसूलहु, अगर तुम अल्लाह के और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे, ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल में कोई कमी नहीं करेगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। तो ईमान और इस्लाम अलग अलग है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दौर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से जाने से पहले, वफात से पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी आए और सीधा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से घुटने लगाकर बैठे और 3 सवालात किए। पहला सवाल मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? दूसरा सवाल मल ईमान, ईमान क्या है? और तीसरा सवाल मल एहसान, एहसान क्या है? तीनों के जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए। इस्लाम अलग है, ईमान अलग है, एहसान अलग है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के इस्लाम में दाखिल होते हैं, फिर इस्लाम के अंदर आप उन तमाम बातों पर जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया अमल करते हैं और अपनी जिंदगी में लाते हैं, फिर आप ईमान के अंदर दाखिल हो। ईमान के बाद फिर तीसरा दर्जा एहसान का आता है, यानी जितने आप अमाल कर रहे हैं उन तमाम अमाल के अंदर हुस्न पैदा करना है, उन अमाल को खूबसूरत बना है। नमाज खूबसूरत, रोजा खूबसूरत, ज़कात खूबसूरत, हज खूबसूरत, जो भी अमल करे उसको मकाम एहसान तक पहुंचाना है, खूबसूरत अमल करना है। तो यहां पर बद्दू क्या कह रहे हैं? हमने ईमान लाया, और अल्लाह ताला फरमाया आपने ईमान नहीं लाए, बल्कि ये कहो कि हम इस्लाम लाए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। हाँ, अगर ये ईमान दाखिल कब होगा? जब तुम अल्लाह की उसके रसूल की इताअत करेंगे, जो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल दे रहे हैं उसकी इताअत करेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे, तब तुम्हारे अंदर ईमान आएगा। और उसके बाद अल्लाह तुम्हारे अमाल में कोई कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, ईमान वाले कौन है? अब अल्लाह खुद फरमा रहे ईमान वाले कौन है। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं मुसलमान हूं या मोमिन हूं, किसके सामने? कुरान के सामने। आपने सिर्फ कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आज हमारी यही हालत है। हम मुसलमान इसलिए मुसलमान है, अम्मी मुसलमान है, अब्बा मुसलमान है, दादा मुसलमान है, दादी मुसलमान है, नाना मुसलमान है, नानी मुसलमान है। कलमा हमको विरासत के अंदर मिल गया है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पहले ईमान आता था, बाद में इस्लाम में दाखिल होते थे। मक्के के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब क्या था? सीधा मार पड़ने लिया, कलमा पढ़ लिए कि मक्के वाले उसको मारते थे। तो पहले ईमान आ जाता था, अब मैंने कलमा पढ़ लिया, अब ये वो तकलीफ उठाने के लिए तैयार अल्लाह के रसूल की इताअत करनी। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे ईमान वाले कौन है? इन्नमल मुमिनून, ईमान वाले तो वो है अल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूली और अल्लाह के रसूल पर, सुम्मा लम यरताबू, फिर शक में नहीं पड़े, वजाहदू भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम, और उन्होंने जिहाद किया अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी जानों से भी और अपने मालों से भी, फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून, ये अपने बात में सच्चे हैं, जिन्होंने अपनी जान और माल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर उनकी इताअत, उनकी फरमाबरदारी में लगाए, ये ईमान वाले हैं। सिर्फ कलमा पढ़ने से ईमान में दाखिल हुए आप, कलमा पढ़ने से इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान हो गए। अब अगर आपने आपको ईमान वाले कहते हो तो क्या करना पड़ेगा? पहला शक नहीं करना है, सुम्मा लम यारताबू, शक में नहीं पड़े, और उसके बाद उन्होंने जिहाद किया, लड़े अपनी जान और अपने माल से अल्लाह के रास्ते के अंदर, तो ये अपनी बात में सच्चे, उलाइका हुमुस सादिकून। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह दीनीकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या तुम अल्लाह ताला को सिखलाते हो या जतलाते हो अपने दीन के बारे में? वल्लाहु यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ताला जमीन और आसमानों के अंदर जो चीजें, वो सारी चीजों का अल्लाह ताला के पास इल्म है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। यमुन्नुना अलैका अन अस्लमू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं भाई कोई जमात, कोई तंजीम अगर बन रही है, कोई भी जमात, कोई भी तंजीम, कोई भी तहरीक अगर बन रही है, तो जो बंदा भी उसके अंदर अपने आप को मेंबरशिप लेता है, तो वो समझता है कि मैंने इस पर एहसान किया, मैं इस तंजीम से, इस जमात से, इस पार्टी से जुड़ा, तो वो पार्टी वाला भी उसका एहसान मंद है कि भाई अपने से जुड़े हुए। तो जैसे कोई कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से जुड़ रहा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे तुम एहसान नहीं कर रही, तुम अल्लाह के रसूल से जुड़ रहे ना, अल्लाह से जुड़ रहे, अल्लाह के दीन से जुड़ रहे हैं। तो पहले अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या तुम एहसान जताते हो अपने दीन का अल्लाह ताला पर? वल्लाहु यालमु, जबकि अल्लाह ताला आसमान और जमीन में सब चीजों को जानता है और हर चीज का उसको इल्म है। यमुन्नुना अलैका अस्लमू, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इन्होंने इस्लाम को कबूल किया है, ये आप पर एहसान जताते हैं कि हमने इस्लाम कबूल की। अल्लाह के रसूल आप एहसान मानिए, बोले हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दे कि अपने इस्लाम लाने का एहसान मुझ पर मत जतलाओ, ये इनसे कह दो कि आपके पार्टी के अंदर जमात में शरीक है तो एहसान मत जताओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुमुल ईमान, बल्कि ये अल्लाह तबारक ताला का एहसान तुम पर है कि अल्लाह ताला ने ईमान की तुमको हिदायत दी, ये अल्लाह का एहसान है तुम पर। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इन्नल्लाह यालमु गैबस समावाति वल अर्द, अल्लाह तबारक ताला आसमान और जमीन के तमाम गैब की चीजों को जानता है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह तबारक ताला देखता है जो कुछ तुम करते हो। बहुत गहरी बातें थी ये पूरे सूरह हुजरात, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खत्म हो गई। सूरह हुजरात मुकम्मल कर दिया, हमने 5 मिनट ऊपर बढ़ गए, जब शुरू करे थे वहां से हमारे 5 मिनट बढ़ गए। बहुत अहम हिदायत, बहुत गहरी बातें इसके अंदर अभी तो आपने सुन लिए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमको जो दिमाग जहन दिया है ना, अब इसके अंदर ये प्रोसेस चालू रहता है इसका। हो सकता हम यहाँ पे सरसरी सुने, लेकिन जब भी आपके सामने आएंगे ये बातें, गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, किसी की मजाक नहीं उड़ाना, एक दूसरे को बुरे अल्फाज से नहीं पुकारना है, कोई खबर अगर ला कर दे रहा है उस पर भरोसा नहीं करना, इतनी अहम बातें हैं कि एक इज्तिमाई जिंदगी के अंदर और एक तरबियत याफ्ता जमात के लिए ये तमाम चीजों पे अमल करना, जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह बात का सरसरी तौर पर तो हमने सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह तो जब वक्त आएगा सारी चीजें हमारे सामने खुल कर आएंगी, और इन तमाम बातों से जो इसके अंदर रोका गया है उससे हम बचने की कोशिश करेंगे। जो ईमान और आमाल करने के थे इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जो कमी कोताही हुई, कमी ज्यादत हुई थी, अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। जितनी अच्छी बातें थी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिनसे मना किया गया था उससे हमको बचने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मिनट।